Good morning, dear students. Our next chapter is surface area and volume of solids. Dear students, what do you mean by solids? Solids are the figure which occupies a portion of space enclosed by plane or surface areas is called a solid. For example, in previous classes you have studied the surface areas and volumes of cubes and cuboids, and in this chapter we will extend our study to more solids like right circular cylinder, spheres and right circular cones, and the combination of these figures as units. Dear students, in class 9th we have studied about the cube and cuboid. Suppose there is a cuboid having length L, breadth B and height H. This is L, this is B and this is H. Then surface area, total surface area of this solid cuboid is 2LB plus BH plus HL. This is the total surface area, S total. Here S stands for surface area. And volume, dear students, we know that volume of cuboid is L into B into H, unit cube, and this has unit square as unit square, and this is unit cube. Dear students, the length of the diagonals of cuboid, this is suppose D is the length of diagonal, then D is equal to under root L square plus B square plus H square. If solid is cube, in case of cube, length, breadth and height, these three dimensions will be equal in case of cube. So next solid is cube. In case of cube, all the sides of cube are of same length. This is A, this is A, this is A. In this case, length of diagonal D is equal to root 3A, and surface area, total surface area, S total is equal to 6A square, because A square is the surface area of each face of the cube. There are 6 faces in the cube, therefore 6A square is the total surface area of the cube. Volume will be equal to A into A into A, that is A cube. This is the volume. Next solid is a cylinder. Surface area and volume of a cylinder. Surface area and volume of cylinder.
Dear students, you all are familiar to the cylinder. Your pencil is in shape of cylinder. Pipe from which there is supply of water is in shape of cylinder. Your pen is in shape of cylinder. Therefore, you all are already familiar with the shape cylinder. Like this is the circular portion, and this is also the circular portion, and this is the height of cylinder, and this is the radius of cylinder. Then there are, if this cylinder is solid, then there are two types of surface areas. One is curved surface area, and others are two surface areas of the ends of the cylinder, that is top and bottom, areas of top and bottom of the cylinder. Dear students, curved surface area of cylinder is equal to 2 pi r into h, and total surface area of cylinder is S total is equal to 2 pi r h is the curved surface area, and pi r square is the area of the bottom, and pi r square is the area of top. So 2 pi r h plus 2 pi r square is equal to 2 pi r is taken common, then we find r plus h unit square. Dear students, volume of cylinder is obtained by formula V is equal to pi r square h, area of base into height. So area of base of cylinder is pi r square and height is h. So volume is area of base into height. Pi r square h is the volume of cylinder. Dear students, consider the next solid. A hollow cylinder cylinder, hollow cylinder. Dear students, this is the shape of a hollow cylinder. This is a outer cylinder and this is the cylinder, inner cylinder. Dear students, these part are solid and this स्पेस अंदर जो है इस छोटे वाले सिलेंडर के, ये स्पेस आपका बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी मटेरियल नहीं है, तो हम लोग इसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। स्मॉल आर रेडियस है जो आपका सिलेंडर है अंदर, और जो बाहर आपका सिलेंडर है
इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो क्या होगा वॉल्यूम इस सिलेंडर का? इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या है? इसका अगर हम बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका इक्वल टू हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यह तो हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और थिकनेस ऑफ सिलेंडर कितना है? ये जो थिकनेस है ये आपका है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसको बोलते हैं थिकनेस ऑफ सिलेंडर। ये है थिकनेस ऑफ सिलेंडर है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। एक्सटर्नल, अब इस हालो सिलेंडर में 2 कर्व्ड सरफेस एरिया होंगे। एक तो एक्सटर्नल जो आपका सिलेंडर है उसका, और एक जो इंटरनल सिलेंडर है इसके अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? मिलेगा पाई कैपिटल 2 पाई कैपिटल आर इंटू हाइट सिलेंडर का h है तो 2 पाई कैपिटल आर एच। इसी प्रकार से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल सिलेंडर इक्वल टू मिल जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। अब हमें अगर फाइंड करना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, तो वो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हालो सिलेंडर इज इक्वल टू, यह हो जाएगा जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का एरिया टॉप में और फिर क्रॉस सेक्शन का एरिया बॉटम में। तो एरिया ऑफ, यह एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन है, सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन जो है उसका एरिया है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टॉप का बॉटम का प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर सिलेंडर का या एक्सटर्नल सिलेंडर का प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल सिलेंडर, सबको ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा हालो सिलेंडर का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हालो सिलेंडर इज इक्वल टू, वी विल फाइंड 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टॉप और बॉटम, कोई भी एक ले लो, 2 टाइम्स। तो यहाँ मिल जाएगा हमें पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये मिल गया हमको। यहाँ से हमें फार्मूला मिल जाएगा, ये सिंप्लीफाई करने पर 2 पाई कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में मिलेगा हमें कैपिटल आर स्मॉल एच प्लस स्मॉल आर स्मॉल एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यह हमारा इतना यूनिट स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हालो सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अगर हमें पता करना हो तो क्या मिलेगा हमें? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो इसमें टोटल वॉल्यूम क्या होगा? आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इंटरनल सिलेंडर का वॉल्यूम। तो यह मिल जाएगा फार्मूला हमें पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई एच को बाहर ले लिया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट क्यूब। यह हो गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हमारा। तो हमारा सिलेंडर कोई है सॉलिड है पूरा, तो उस केस में कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच
टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, टॉप और बॉटम दोनों के एरियाज़ का सम 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो एस टोटल हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर प्लस एच यूनिट स्क्वायर। वॉल्यूम वी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब कोई अगर हालो सिलेंडर है जिसमें कि एक आउटर सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है और इंटरनल सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर थिकनेस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, दैट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टॉप या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉटम, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, वेयर एच इज़ द हाइट ऑफ सिलेंडर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल सिलेंडर 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हालो सिलेंडर, तो एक्सटर्नल सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इन सब का एडिशन हमें ये मिल जाएगा फार्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ हालो सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, दैट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन and into height, this is the volume of material unit cube. Our next solid is sphere, and after that we will discuss about the cone